Assalamualaikum students, welcome back. Today we are going to read our new poem, Moon Wind, on your book page number 25. So open your books. First we have words to know, means words meaning. Clouds, hits. Ferris wheel, a giant revolving vertical wheel as seen at fun fairs. Flounders, struggles and plunges in mud or while wading. मतलब कीचड़ में लोटपोट होना. Marquee, a large tent, मतलब खेमा. Squall, a sudden and violent gust of wind. अचानक हवा का बड़ा झोंका. Utter, complete. There is no wind on the moon at all, yet things get blown about. In utter stillness, your candle shivers out. In utter stillness, a giant marquee booms and flounders past you like a swan at sea. In utter stillness, while you stand in the street, a squall of hens and cabbages knocks you off your feet. In utter stillness, while you stand agog, a tearing, twisting sheet of pond clouds you with a frock. A camp of caravans suddenly squawks and takes off. A Ferris wheel bounds along the skyline like a somersaulting giraffe. Roots and foundations, nails and screws, nothing can hold fast. Nothing can resist the moon's dead still blast. Ted Hughes. Now about the poet. Ted was born in Mytholroyd, Yorkshire. He went to Cambridge University to study English and later switched to archaeology and anthropology. He won many prizes for his poems and was appointed poet in 1984. In this poem, the poet provides us with a very strange picture of the wind that he imagines to be present on the moon. There is no wind on the moon at all, yet things get blown about. He then goes on to point out that the wind seems to be howling all over the moon's surface, but it is doing so in utter stillness. This is very strange indeed, rather like using phrases such as bright darkness, dark sunlight, or cold flames. Can you think of any other opposites or absurd pairs? In this poem, we also came across very unusual things, such as a squall of cabbages, a somersaulting giraffe. Here we see how the poet has used his imaginations to create completely new things with which to amuse and startle us. अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने अबाउट दी पोइट बताया कि टेड जो थे वो उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं पोएम्स लिखने के ऊपर, और वो अपॉइंट भी किए गए थे एज अ पोइट लॉरिएट इन 1984. उसके बाद उन्होंने मज़ीद बताया पोएम के बारे में कि पोइट ने जो है बहुत स्ट्रेंज सी एक पिक्चर डिस्क्राइब की है उस चीज़ की कि मतलब चांद के ऊपर हवा चल रही है. दो वी नो कि चांद के ऊपर कोई हवा नहीं होती है, लेकिन चीज़ें जो होती हैं वो ब्लोन अवे, मतलब उनके ऊपर एक ऐसा इफेक्ट आता है जो हवा के बाद चीज़ें उड़ जाती हैं, कुछ इस तरह का हो जाता है. उसके बाद वो एक पॉइंट के ऊपर इस तरह से जाते हैं कि जो हवा होती है वैसा लग रहा होता है कि मून की सरफेस के ऊपर जा रही है, लेकिन एक कंप्लीट खामोशी के साथ, अटर स्टिलनेस के साथ, मतलब बिल्कुल खामोशी से और चुपचापी से जो है ना, मतलब आवाज़ कोई नहीं होती लेकिन वहाँ पे हवा मौजूद होती है. मतलब उसने उसको इस तरह से कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं ना, जैसे बहुत रोशन अंधेरा या बहुत अंधेरी सूरज की रोशनी, इस तरह के जो मतलब ऑपोजिट्स वाले पेयर्स होते हैं, उससे उसने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया. मतलब विंड है भी लेकिन उसकी कोई मतलब हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स हम देख सकते हैं हवा चलने के बाद. उसके बाद उन्होंने बताया कि इस पोएम के अंदर उन्होंने कुछ अजीब से अनयूजुअल सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मतलब जैसे स्क्वॉल ऑफ कैबेजेस इस्तेमाल किया, एक कलाबाजी खाता हुआ जिराफ. मतलब इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि पोइट की जो इमेजिनेशंस हैं वो किस तरह की हैं. वो मतलब बिल्कुल जो है वो एक डिफरेंट तरह की वो इमेजिनेशंस और इमेजेस क्रिएट करते हैं जो कि बहुत डिफरेंट होती है बाकी लोगों से. अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं. देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल, येट थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट. चांद पर कोई भी हवा नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज़ जो है वो यहाँ वहाँ इधर उधर उड़ती रहती है. योर इन अटर स्टिलनेस योर कैंडल शिवर्स आउट. लेकिन मुकम्मल खामोशी और साकित जगह पर मोमबत्ती भी हिलती है. In utter stillness, a giant marquee booms and flunders past you like a swan at sea. मुकम्मल खामोशी और साकित जगह में एक बहुत बड़ा सा खेमा है, गरजते हुए मिट्टी, कीचड़ आसपास में कीचड़ होता है, आसपास गुजरता है जैसा कि स्वान यानी कि हंस समंदर पर होती है. In utter stillness, while you stand in the street,
एक मुकम्मल खामोशी में जब आप सड़क में खड़े होते हैं या गली में खड़े होते हैं, a squall of hens and cabbages knocks you off your feet. तो अचानक से तेज़ बपरी हुई हवा के साथ मुर्गियाँ और सब्जियाँ यानी बंद गोभी आपके पास से गुजरती हैं और आपको गिरा देती हैं आपके पैरों पर से. इन अटर स्टिलनेस वाइल यू स्टैंड एगॉग. एक मुकम्मल खामोशी में जब आप एक शशोपंज में खड़े होते हैं कि आगे क्या होगा या आप कुछ सोच रहे होते हैं. अ टेयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड क्लाउड्स यू विद अ फ्रॉग. और तालाब की जो शीट है वो पूरी तरह जब वो बेंड हो रही होती है, एक मेंढक से आपकी टक्कर होती है. अ कैंप ऑफ कैरावन्स सडनली स्क्वैक्स एंड टेक्स ऑफ. अचानक से काफले यानी बहुत सारे लोगों की बहुत तेज़ आवाज़ आती है और चली जाती है. अ फेरिस व्हील बाउंड्स अलोंग द स्काई लाइन लाइक अ समरसॉल्टिंग जिराफ. और उफक यानी कि स्काई लाइन पर साथ एक बहुत बड़ा सा एक घूमने वाला पहिया लटका या टंगा हुआ होता है, जैसे कलाबाजियाँ खाता हुआ ज़राफ़ा. रूट्स एंड फाउंडेशंस, नेल्स एंड स्क्रूज, नथिंग कैन होल्ड फास्ट. जड़ें जो कि ज़मीन में मौजूद चीज़ें हैं, और बेस यानी कि बुनियाद, कीले हैं और पेचदार कीलें. कोई भी जल्दी से पकड़ नहीं पाता यानी होल्ड नहीं कर सकता. कोई भी चांद पर मुज़ाहमत नहीं कर सकता. नथिंग कैन रेजिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट. और ये एक खामोशी और मुर्दा तूफ़ान है, यानी बज़ाहिर को साकत है मगर ये एक तूफ़ान की तरह है. उन्होंने बेसिकली हमें पूरा एक कंसेप्ट दिया है कि जैसे हम कहते हैं कि मून के ऊपर कोई विंड नहीं होती, कोई हवा नहीं होती, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ लिविंग क्रिएचर्स चली जाती हैं, कोई फेरिस व्हील होता है, कोई कैंप है, तो कैंप भी उखड़ जाएगा. वैसे तो वहाँ पे कोई हवा नहीं है, लेकिन एक खामोशी में जो है एक हवा वहाँ पे मौजूद है जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन उसका एक्शन पूरा है. हमारे पास फ्रॉग है या हमारे पास जिराफ है, वो कलाबाजियाँ खा रहा है. फेरिस व्हील कलाबाजियाँ खाता हुआ गुजर रहा है. नेल्स जो हैं वो जड़ों बेसिस पर से उखड़ रही हैं. और ये सब कुछ उन्होंने टेड ने इस पोएम के अंदर एक सिनेरियो बताया है कि चूंकि हम वैसे तो हम कह रहे होते हैं कि मून के ऊपर कोई विंड नहीं है, लेकिन मून के ऊपर विंड होती है, जो कि उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू, डिफरेंट इमेजिनेशंस के थ्रू हमें प्रूफ करने की कोशिश की है. तो अब वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं जी. तो सबसे पहले आप बनाएंगे टाइटल पेज मून विंड का, उसके बाद ये वर्ड्स मीनिंग है, आपने उनको कॉपी डाउन करना है. वर्ड्स मीनिंग: ब्लोन फटा हुआ, स्टिलनेस खामोशी, शिवर्स हिलाना लरजना, जाइंट बड़ा, मार्क्यू खेमा, बूम्स गरजना, फ्लाउंडर्स कोशिश करना, स्क्वेल अचानक हवा का बड़ा झोंका, एगॉग बेताबी से शौक से, कैरावान्स काफला, बाउंस हुदूद, फाउंडेशंस बुनियाद, रेजिस्ट मुजाहिमत करना, समरसॉल्ट कलाबाजी. नाउ वर्ड्स सिनोनिम एंटोनिम्स: एगॉग excited and curious, giant large dwarf, blast blow save, stillness calmness restless, utter complete incomplete, resist defend surrender, shiver tremble stiffen, clouds hits powerlessness. Now come to the page 26 of your book. We are doing the exercise A, understanding the poem. Answer the following questions. Part B से start करेंगे. When the moon wind begins to blow, some strange things happen. Make a list of all the unlikely things that take place on the moon. जब हवा चली थी मून के ऊपर तो कुछ अजीब सी अनयूजुअल सी चीज़ें हुई थी, तो हमें उन तमाम को लिस्ट बनानी है, उन तमाम को बताना है कि वो क्या चीज़ें थी. A squall of hens and cabbages knocks you off your feet. मुर्गियाँ और जो सब्ज़ी कैबेज थी उस इस तरह से आई हवा चलने पर कि आपके पैरों के बल आप गिर गए. अ टेयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड क्लाउड्स यू विद अ फ्रॉग. एक फ्रॉग ने, एक मेंढक ने जो है वो शीट ऑफ पॉन्ड को जो है बिल्कुल ट्विस्ट कर दिया था. अ कैंप ऑफ कैरावान्स स्क्वैक्स. जो कैरावान्स यानी काफिला जा रहा था वो ब्लो अप हो गया. अ फेरिस व्हील बाउंड्स अलोंग द स्काई लाइन. जो फेरिस व्हील थी वो कलाबाजी खा चुकी थी एक ज़राफ़े की तरह. C. Which words does this poet use to describe the following or the movement they make? In what way are the descriptive words appropriate? First one, candle flame. हमें इन वर्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है कि किस तरह से जो है इस वर्ड को उन्होंने किस सेंस में यूज़ किया. कैंडल फ्लेम. द कैंडल शिवर्स आउट. नॉर्मली वी वुड से फ्लिकर, बट शिवर इज जस्ट एज गुड एज अ वर्ड. Its use is odd in that shiver is not associated with heat but the cold. Here, if this candle shivers out, we feel the cold even more.
वो कह रहे हैं कि कैंडल फ्लेम जो है वो शिवर आउट हुआ था। वैसे हम कह रहे होते हैं कैंडल फ्लिकर, लेकिन शिवर को हमने सेंस में इसलिए यूज़ किया। वैसे तो हमें और लग रहा है क्योंकि शिवर कब होता है, कोल्ड, लेकिन इसको हमने जब वो हीट से एसोसिएट किया हुआ है, रिलेट किया हुआ है। अगर हम कह रहे हैं कैंडल शिवर्स आउट, दैट मीन्स हम जब वो कोल्ड को बहुत ज़्यादा ही फील कर सकते हैं। Up next one is giant marquee. Booms and flounders like a swan at sea. We have sound booms in movement. Here, the image of a swan, a large bird like the large marquee, floundering in the sea is. The swan is normally serene on a placid body of water, but ungainly when not in its usual environment. अब वो giant marquee की बात करें कि जो swan जो थी, जॉइंट मार्क्यू जो था, मतलब जो हमारे पास ख़ीमा था बहुत बड़ा सा, वो जो है वो एक स्वान जो एक बर्ड होता है बहुत बड़ा सा, सी के ऊपर यूजुअली पाया जाता है, उसकी तरह जो है वो बूम कर रहा था, यानी ब्लो कर रहा था। तो वो क्या कह रहे हैं कि फ्लंडरिंग इन द सी तो एक कॉमन सी बात है, और स्वान जब एक नॉर्मल सी एक चीज़ है जो हम अक्सर देख रहे होते हैं वाटर के ऊपर। लेकिन जो उन्होंने जाइंट मार्क्यू की तरह से बात की है तो ये एक यूजुअल इन्वायरमेंट की बात नहीं है। Hens and cabbages, a squall knocks you off your feet. There are then flying haphazardly and at some speed, an image akin to raining cats and dogs. One would know too well if one is hit by these flying objects. जब वो hens और cabbages ने एक बंदे को हिट किया और वो पैरों के बल गिरा था, तो वो कह रहे हैं कि जैसे कि हम कह रहे थे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो जब एक बंदे से वो चीज़ टकराती है एक सेम स्पीड के ऊपर जाके, तो ही इंसान फील कर सकता है कि वो हिट कितना ज़्यादा ज़ोर से होता है। तो उन्होंने उस चीज़ की एग्जांपल दी है। नेक्स्ट पॉइंट, टीयरिंग ट्विस्टलिंग शीट clouds you with a frog. To the eye upon looks like a sheet of water. If this sheet were to suddenly fly towards you, it would indeed be tearing or twisting, and being clouded by a frog would certain not only be a surprise but painful as well. तो वो कह रहे हैं कि बात की थी उन्होंने पॉन की, तो उसको उन्होंने शीट की तरह देखा, क्योंकि हम दूर से देखेंगे तो एक शीट ऑफ वाटर की तरह लग रहा होता है। तो जब उसको एक फ्रॉग ने पुल किया तो वो इसी तरह से ट्विस्ट हुआ होगा, और ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, लेकिन एक दर्दनाक सी बात है। Caravan suddenly squawks and takes off. The caravans, presumably parked in a caravan park, are compared to a flock of birds sitting in a field and then suddenly taking off. Caravans को एग्जाम्पल इस तरह से दी हुई है कि जो अचानक से जो है वो ब्लो अप हो गए थे, तो उन्होंने एक वो किया हुआ है कि कैरावन पार्क के अंदर जो है वो उन्होंने एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी बहुत सारे बर्ड्स के जमघट्टे को उन्होंने वो किया हुआ है कि वो फील्ड पे बैठे हुए होते हैं और अचानक से जो है वो उड़ना शुरू कर देते हैं। Ferris wheel bounds along the skyline like a somersaulting giraffe. A Ferris wheel is large and stands out against the skyline, so does a giraffe. A spinning giraffe with its long legs sticking out would indeed look like a Ferris wheel with its hanging swings flying in all directions. जिन्होंने Ferris wheel को वो किया था, कंपेयर किया था जिराफ के साथ, तो वो ये कह रहे हैं जैसे कि फेरिस व्हील बहुत जाइंट सा बड़ा सा होता है और बिल्कुल आसमान के साथ दूर से हम देखें तो ऐसा लगता है वो आसमान को छू रहा है, इसी तरह से यहाँ पर जिराफ भी बहुत बड़ा सा होता है, और एक स्पिनिंग जिराफ किस तरह से दिखेगा, जिसकी बड़ी बड़ी सी टांगें हों, बिल्कुल फेरिस व्हील की तरह लगेगा, उसकी स्विंग्स बाहर निकले हुए और वो जो है वो तमाम डायरेक्शंस में फ्लाई करे जैसे फेरिस व्हील घूम रहा होता है। डी, What is so strange about the idea in the last line of the poem? Can you think of any other expressions of this kind? वो कह रहे हैं कि जो लास्ट लाइन के अंदर बात हुई हुई है वो बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अनोखी सी बात है। तो आप जो है इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, मतलब इसके ऊपर क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए। Dead still means absolutely without movement. Blast means a strong gust of wind. There is a contrast here of opposites. It is rather like saying he is a meat eating vegetarian. वो कह रहे हैं कि डेड स्टिल, मतलब यहाँ पे दो कंपैरिजन किए हुए डेड ब्लास्ट के। डेड स्टिल का मतलब है कि कोई चीज़ बिल्कुल मतलब एक पॉज पोजीशन में और बिल्कुल मूवमेंट नहीं शो कर रही है, और ब्लास्ट का मतलब होता है कि हवा का एक तेज़ झोंका। तो वो कह रहे हैं कि ये कंट्रास्ट बिल्कुल इस तरह से, इन अपोजिट्स का कंट्रास्ट बिल्कुल इस तरह से कि हम ये बोलें कि एक मीट ईटिंग बंदा जो है वो वेजिटेरियन है। अब आ जाइए एक्सरसाइज बी ऑन योर बुक पेज नंबर 27। क्वेश्चन है, here are some similes that you are familiar with, can you complete them? तो यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। As white as snow, as clear as a bell, as sound as a bell, as dark as night, as bright as a button, as soft as silk, as sharp as a knife, as poor as dirt, as strong as an ox, as quick as flash, as smooth as silk, as straight as an arrow. अब चलते हैं इंट्रोडक्शन और समरी की तरफ। इंट्रोडक्शन, दिस पोएम इज रिटन बाय टेड
He was born in 1930 in Mythol Meroid, Yorkshire. He won many prizes for his poems. बेसिकली जो उन्होंने बताया हुआ है टेड कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वो 1930 में बॉर्न हुए थे, उसके बाद उन्होंने पोएम से रिगार्डिंग बहुत सारे प्राइजेस जीते. समरी. In this poem, the poet presents a strange picture of moon and excites the imagination. The poet has used everyday things and beings and associated to strange and impossible qualities to them. The poet says that life on the moon will be extremely difficult. There is no air to breathe, no water to drink, no food to eat, and there is no gravity as well. You will find it impossible to keep your balance. In this poem, we also came across very unusual things such as a skull of hen and cabbages and somersaulting giraffe. The poet has used his imagination to create humor which amuses and startles us. वो बता रहे हैं कि इस पोएम के अंदर पोइट ने ये एक बहुत ही कोई स्ट्रेंज सी पिक्चर प्रेजेंट करी है मून, मतलब एक लाइफ ऑन मून की, और हमारी इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा एक्साइट किया. जो हम एक चीज़ इमेजिन करते हैं उससे उन्होंने तो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी है. पोइट ने जब हमारी मतलब नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों को और इंसानों को और कुछ जानवरों को इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ इम्पॉसिबल सी क्वालिटीज़ उनके अंदर बताई हैं. पोइट ने कहा कि लाइफ जो मतलब चाँद के ऊपर जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ना हवा है, ना पानी है, ना खाना है, और वहाँ पे कोई ग्रेविटी भी नहीं है. तो इंसान अगर वहाँ पे जाएगा भी तो फ्रीली जो है ना वो मूव करता रहेगा विदाउट एनी बैलेंस. अब उन्होंने इस पोएम के अंदर जब कुछ अनयूजुअल सी बातें करी, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने एग्जांपल दी कलाबाजी खाता हुआ जिराफ, जो कि हम एक नॉर्मल इमेजिनेशन के अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. तो पोइट ने इस तरह के इमेजिनेशंस क्रिएट करने का मकसद ये था कि उसके अंदर वो ह्यूमर यानी थोड़ा सा फ़न वो कर सकें, और जिससे हम लोग भी थोड़ा सा लुत्फ़अंदोज़ हों और हम लोग कुछ हैरान भी हो इनकी इमेजिनेशंस के ऊपर. तो ये थी आपकी समरी. अब चलते हैं लास्ट थिंग विच इज़ ऑब्जेक्टिव. लेट्स गो. Question 1 is write whether the statement is true or false. First one, the synonym of utter is complete. True. The Moonwind is written by Ted. True. He was born in 1998. False. A tearing twisting sheet of pond. True. The synonym of murky is a small tent. False. The synonym of clouds is hope. False. Now fill in the blanks. In utter stillness. There is no dash on the moon at all. Wind. Dash and flungers past hue. Booms. A dash of hens and cabbages. A squall. A tearing dash sheet of pond. A tearing twisting. A Ferris wheel dash along the skyline. Bounce. Dash you with a frog. Clouds. Nothing can dash the moons. Resist. Like a somersaulting giraffe. So here's all the work of your poem Moonwind. You have to copy down all of this on your notebooks. That's it for today. Thank you so much.